Hello, everyone. My name is Vishal, and a very happy New Year in advance. Um, in the coming New Year, I've taken a very small initiative wherein I'll be sharing the whole the professional experience that I've gained so far in the last 4 years at the incubation center. I would like to share those information, learn from the people, and grow in my career, right? And the best way to do that I figured out is by sharing whatever that you have learned, right? When you share, you care, and when you share, you learn, right? So that has been my motto so far. It's a very small initiative where we will be understanding how we can understand various sectors in a very in-depth manner, whether you are from a startup ecosystem, if you're an enabler, if you want to do some business in any of the sectors that we'll be covering, this information might be helpful for you, right? So what I've seen so far is like everyone has a unique approach of, what do you say, to approach a business. Or when you read a case study from any of the, documents, there is a unique approach that everyone has, right? But I think if we add a layer of, structure to that process, the way we intercept the businesses, right? And that will be really helpful. And we know that this is a, what do you say? It's an era of, Chat GPT, the Gen AI, Agentic AI, and all those stuff. We'll be also trying to inculcate those technologies in our, process of understanding the business, right? So that is the initiative that I've took on, and I hope I'll be able to, uh, add as much as value as possible to anyone in the startup ecosystem, right? This is a process wherein we'll be learning from each other, understanding things in a much better manner, and maybe 2026, at the end of the 2026, we could see a better version of ourselves, coming out of the whole process, right? So we'll be starting with one sector on a regular basis, but then we'll be also inculcating, like I've said earlier, we will be also inculcating the technologies, and also the concepts we'll be covering on. Now what I've seen is when you're very early to the, say you are an early entering into the startup ecosystem world, there are certain jargons that might be a little bit confusing for people, right? So in the process of understanding the business, we lose interest if we're not well versed with the jargon. Of course, we have ChatGPT and all who could help us clarify those jargons. But then when you use when you use ChatGPT to understand the jargon, sometimes you get confused on the loop. It's better that you get the basics correct, and then sort of use this AI tools to get more clarity in depth, and that should be the process, right? You might have observed in your particular case as well. So very quickly, so what I've did is like I started with a very interesting segment. That's a QSR segment. We'll understand like how anyone, if you want to enter into the QSR segment, what should be, what all things we need to know initially, right? um, but for this part one of the series, I'll start with basics financial, terms here, right? So there's gross margin, there's net profit, and people when they talk and they will use this jargons in the businesses, we might not be able to relate to those things, right? The idea is we have that concepts in our mind, so whenever we are reading a report, or even if we're watching a YouTube video for that matter, we are able to understand those concepts very nicely, right? So part one of this the ongoing series, we'll be covering few financial aspects initially, few things about QSR as part one, so that you go back and you learn things, right? So we'll be having that approach. In the further lectures also, I'll be focusing more on the basic terms, and then coming to the reports and other stuff, right? That will really help us, on a long way term. So I'll be just sharing my presentation over here. Um, all right. So we'll be talking about, like I've said, QSR. What is QSR? Is quick service restaurant segment. We'll be covering that.
बट आइडिया जैसे मेरा था, जैसे मैंने आपको बताया, we'll be covering few concepts and then actually getting into the segments or the sectors for that matter, not the other way around, right? A bit introduction about myself. My name is Vishal. Like I've said, I'm working at the incubation center of IIM Bangalore. Been working with the Women Entrepreneurship Program for last 3 years right now. So this December exactly marks my 3 years at the incubation center. But apart from that, I've been involved with a lot of student entrepreneurs from the very beginning. I've been guiding them. I've been learning from them, I would say, because the kids are pretty much smart. So it's been a fantastic journey so far. But then I want to have this initiative a structure. So I've been doing on and off for the last couple of years. But then the idea is to give it a structure, and then interact with as many people as possible, share knowledge with as many people as possible, and then eventually maybe build a community of people who want to do entrepreneurship, right? So this is my resolution. Like I've said, 2026 is to learn, share, and grow within the ecosystem. Um, Okay. So we'll cover QSR in depth. But before that, I wanted to give attention to certain financial terms, so that when we cover report on the later part, things becomes much more easier, है ना? आपने P&L statement सुना होगा. You would have learned about P&L statement. The financial background people तो will have definite knowledge about it. But क्या हमें in depth समझना है P&L के बारे में? हमें basic समझना है. Right? This is not your typical a financial master class, or say someone who's preparing for a CA or those stuff. हमें उतना समझना है जितना हमें चाहिए, ताकि हम बेसिक नॉलेज गेन कर सके सेक्टर्स के बारे में, राइट? सो P&L स्टेटमेंट मेरे जितना मुझे समझ आता है, हम दो तीन चीजों में इसको डिफाइन करेंगे. एक इनकम वर इज जनरेटेड बाय द बिजनेसेस, राइट? जो आप रेवेन्यू देख रहे हो, आप स्क्रीन में जो आप रेवेन्यू साइड में देख रहे हो, दिस इज द इनकम दैट इज बीइंग जनरेटेड. All the costs and expenses incurred to generate that income. ठीक है? तो वो रेवेन्यू जो जनरेट करने या इनकम जनरेट करने जितने सारे कॉस्ट मतलब इन्वॉल्व हुए, एक्सपेंसेस हुए, वो चीजें भी मेंशन होते हैं P&L स्टेटमेंट में. आप जब उसको फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको एक नेट मिल जाता है. ठीक है? तो द फाइनल रिपोर्ट और प्रॉफिट और लॉस फिगर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू. ठीक है? तो बेसिकली प्लस और माइनस वाला सिस्टम है, आप वैसा मान के चलो, राइट? सो P&L स्टेटमेंट आपको मैंने एक एग्जांपल, एक ABC इंटरनेशनल का एक रैंडम एक एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, जहाँ पे एक रेवेन्यू स्टेटमेंट दिख रहा है, एक्सपेंसेस दिख रहा है, फिर इनकम बिफोर टैक्स जो भी है कैलकुलेट किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी कंपनी ने इनकर किया है, वो चीज यहाँ पे दिखे. बस हमें बेसिक इतना समझना है, ये है P&L स्टेटमेंट. उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. सो वट एवर द थिंग्स दैट आर देयर दैट इज इंपॉर्टेंट, वील नॉट कवर एवरीथिंग इन वन गो अगेन. हम थोड़े थोड़े चीजों को समझेंगे. सो विल बी लर्निंग थिंग्स इन बिट्स एंड pieces, so that we are not overwhelmed with informations. So that is the idea. We are not overwhelmed with the informations, and we actually learn things in a very slow manner, but even in a very concrete manner, right? So that is the whole idea that I'm trying to do here. um Okay, so एक P&L रोड मैप देखते हैं. So there are, if you have been in the startup ecosystem world, और अगर आप if you have read news about startup ecosystem, you would have come up with this jargons. ठीक है? ग्रॉस रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन. क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट? पूरे इस फिनेंशियल वाले टर्म में. उसके बाद आपने एबिटा के बारे में सुना होगा, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अगेन हम चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे. हम समझेंगे कि व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर. ठीक है? व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन स्टार्टअप इकोसिस्टम. अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, राइट? सो विल गेट एन आइडिया ऑन दैट एज वेल. विल मूव कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हियर. ये एक P&L स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, राइट? हम एक छोटा सा जैम का प्रोडक्शन के एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, है ना? हम QSR कवर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आई लाइक जैम. तो मैं सोचा कि व्हाई नॉट टेक जैम एज एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड कि पूरा ये फाइनेंशियल jargons है क्या भाई. ठीक है? तो ये एक P&L स्टेटमेंट आपने देखा होगा. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको अभी के लिए, लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, देन विल कम बैक टू दिस P&L स्टेटमेंट बाद में टुवर्ड्स द एंड. ठीक है? Mind you, we will not cover everything right now. We'll take 2 classes at least to cover the financial statement. But अभी जितना समझ मतलब जो इंपॉर्टेंट jargons है अभी हम समझ गए, गो एंड ट्राई टू रीड रिपोर्ट्स. ठीक है? सो अब मास्टर क्लास से इंटरेक्शन लाइक दैट विल नॉट गारंटी यू कि आप पूरे सेक्टर में एक्सपर्टीज बन जाओ.
but then it will help you to understand concept that you can apply to the the reports that you're learning. तो हम छोटे छोटे segments में समझेंगे और then we'll be able to understand things in a much greater manner maybe. ठीक है. ओके, विल कम टू ग्रॉस रेवेन्यू. अभी ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता क्या है? ग्रॉस रेवेन्यू कुछ नहीं है. अगर मैंने एक जैम बनाया है, जैम को मैंने, मान लीजिएगा मैंने 500 जैम किया है और हर एक जैम का जो है प्राइस 200 रुपीज है, तो मेरा ग्रॉस रेवेन्यू हो गया 1 लाख. बस सिंपल मैथमेटिक्स. ठीक है. तो अगर आपसे आज कोई पूछेगा कि आपका ग्रॉस रेवेन्यू क्या, अगर आप कहीं पढ़ते हो कि ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एबीसी वेंचर वाज दिस, इसका मतलब यही है कि आप कितने प्रोडक्ट्स को कितने प्राइस में बेचे हो, तो उसका एंड जो रेवेन्यू बनता है उसको ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं. जैसे मैंने स्क्रीन में भी डाला हुआ है कि अगर मेरे पास 500 जैम्स है, उसको मैं 200 रुपीज पर जैम अगर बेच रहा हूँ, तो मेरा ग्रॉस रेवेन्यू हो गया 1 लाख. ठीक है. इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स यूज इट टू एक्सेस अ बिजनेस मार्केट ट्रैक्शन एंड ग्रोथ पोटेंशियल. तो एक मतलब ओवरव्यू देखने के लिए. ठीक है. इन डेप्थ में जाते इन्वेस्टर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन इट गिव्स अ सेंस कि क्या होता है उसका, है ना. मतलब प्रोडक्ट में दम है कि भी नहीं. ठीक है. सो इट्स अ ऊपर ऊपर से कि इतना मैंने प्रोडक्ट को इतने पैसे में भेजा तो इतना मेरा ग्रॉस रेवेन्यू हो गया. राइट. सो आज से ग्रॉस रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर होगा आपको. विल मूव टू दी नेक्स्ट थिंग नाउ. अच्छा ठीक है, नेट रेवेन्यू क्या होता है? ठीक है. अब नेट रेवेन्यू भी सिंपल है, क्योंकि नेट रेवेन्यू एक, जैसे आपने सेल्स किया, उसके बाद आपको सेल्स रिटर्न्स कुछ हो गए, डैमेजेस हो गए, डिस्काउंट्स हो गया, अलाउंसेस वगैरह दिया. ठीक है. तो उस चीज को अगर हम सेपरेट करेंगे और हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा वो नेट रेवेन्यू होगा. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर आप इस सेल में भी देखो, अगर मैं रोड मैप में भी देखो, हमने ग्रोस रेवेन्यू कवर किया था. ग्रोस रेवेन्यू से हमने डिस्काउंट, रिफंड वगैरह चीज को माइनस किया था, और उसके बाद जो रेवेन्यू हमारे पास आता है उसको हम नेट रेवेन्यू बोलते हैं. ठीक है. बट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरीज, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारा वो हम देखेंगे, फिक्स कोस्ट वगैरह में आएगा वो कॉन्सेप्ट. लेकिन अभी के लिए समझना है कि जो भी आपके सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस वगैरह को अगर हम माइनस करेंगे, और जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो नेट रेवेन्यू होगा. राइट. एम आई क्लियर? दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. हम देखना चाहेंगे कि यार अगर हम डिस्काउंट्स अगर हम ज्यादा दे रहे हैं, जिस वक्त हमें कम करना है ना, तो हमें प्राइसिंग मतलब अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से चेंज करना होगा. राइट. इफ वी आर लाइक अंडर प्राइस, मे बी वी माइट नॉट बी कंफर्टेबल टू गिव मच डिस्काउंट्स उस केस में. राइट. सो वो एक कॉन्सेप्ट है नेट रेवेन्यू का, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो हमने दो चीजें अभी सीखा है यहाँ पे. एक हमने ग्रॉस रेवेन्यू देख लिया, एक हमने नेट रेवेन्यू देख लिया. राइट. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर सम एक्सपेंसेस नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? कुछ भी चीजें या एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है. तो अगर मैंने जैम बनाया, तो जैम बनाने के लिए जो जो चीजें इन्वॉल्व हुआ है, जैसे अगर मेरे पास जैम है तो फ्रूट्स ऑफ कोर्स उसमें इन्वॉल्व होगा, शुगर इन्वॉल्व होगा. राइट. लेबर, डायरेक्ट लेबर जो एक्चुअली बना रहे हैं उस चीज को, वो इन्वॉल्व होगा. राइट. सो वो सारी चीजें मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए. राइट. तो हमें हमने पहले नेट रेवेन्यू देखा, नेट रेवेन्यू से हमने कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. ठीक है. तो हमने एक्सपेंसेस माइनस किया. देख यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने देखा कि 30,000 जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसको हम माइनस करेंगे प्रोडक्ट के साथ. तो मेरा 95,000 का नेट रेवेन्यू आया था, उसमें से मैंने एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, और इसमें बाद मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा जो हम आगे बात करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जानना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इट हेल्प्स डिसाइड योर प्राइस सो दैट यू आर कवरिंग योर कॉस्ट एंड मेकिंग अ प्रॉफिट, जो हम आगे पे डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीजें ना अगर आप पहले से चलते रहोगे, तो जो बाद में कॉस्ट आता है वो कवर कर पाएगा कि नहीं, आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा. राइट. सो ये था सिंपल एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहां पे आप नेट रेवेन्यू से जो भी चीजें फैक्टर करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. राइट. सो वट एवर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्टली अ फैक्टर ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इफ यू माइनस, इफ यू सब्ट्रैक्टिंग दैट, यू विल गेट अ पर्टिकुलर, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड यू विल गेट अ वैल्यू विच इज नोन एज ग्रॉस मार्जिन. राइट. ग्रॉस मार्जिन. ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखो, जैसे मैं बता रहा था, जो हमने 95,000 में से अगर हम 30,000 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मार्जिन बचता है वो 65,000 का है. राइट. तो आप पूरा खेल समझ रहे हो. हमने 1 लाख से शुरू किया था, जब हमने 500 जैम को 200 रुपए के भाव में बेचा था. उसमें से हमने कुछ कुछ चीजें माइनस करके वी आर कमिंग अप टू 65,000. ठीक है. तो उसमें से एक बड़ा चंक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में गया था, क्योंकि जहाँ पे 30,000 रुपए हमें लगे थे कि हमें
प्रोडक्शन वगैरह में जो चीजों को हमें माइनस करना, तो वी आर माइनस दैट एंड वी आर कम टू अ ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रॉस मार्जिन इज टू लो यू मे नीड टू इंक्रीज प्राइसेस और reduce the direct cost। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। इफ यू कुड सी डायरेक्ट, देयर इज समथिंग नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट वी हैव ऑफकोर्ड, देन वी हैव सीन द प्राइस जो कि हमारा 200 रुपीज पर जैम था। तो अगर आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत कम आ रहा है, आपको लग रहा है मेरा ग्रॉस मार्जिन कम आ रहा है, तो ग्रॉस मार्जिन कम आने का फैक्टर्स क्या है, तो ये दो फैक्टर्स होंगे, राइट। यू माइट हैव टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल, राइट। तो ग्रॉस मार्जिन अगर मेरा कम आ रहा है तो हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं। क्या हम पर्टिकुलर फ्रूट जो हमें पर्टिकुलर एक्स प्राइस में मिलता था, कैन वी सोर्स इट एज वाई प्राइस इन अ वेरी लेस मैनर। ठीक है। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट compromise द क्वालिटी, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। बट हमें ये समझना है कि ग्रॉस मार्जिन अगर कम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ आ गया, इट्स नॉट नियर अ नंबर। ठीक है। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाई डू वी नीड टू गेट अ सेंस ऑफ ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज डिपेंडेंट है, थिंग्स आर नॉट इंडिपेंडेंट हियर, थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। सो व्हेन थिंग्स आर dependent on each other, you need to understand each and every concept so that you become a better founder, or at least you become a person who could access, or you could analyze businesses in a very proper manner, right? A healthy gross margin means you have enough room to pay for indirect expenses that we'll be covering it later. But आपको इतना समझना चाहिए कि ग्रॉस मार्जिन हमारा हेल्दी होना चाहिए। उस हेल्दी ग्रॉस मार्जिन को मेंटेन करने के लिए हम क्या चीजों, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। So if you get that sense, then we can move to the other concept. There's something known as variable expenses also. So variable expenses क्या है भाई? Expenses that aren't directly involved in making the product but still vary based on how much you sell। ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया, मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सो बेसिकली you're selling product, you're using marketing as a mean to sell your product। ठीक है। सो इट्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ठीक है। सेल्स कमीशन हो गया, पेमेंट गेटवे, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन, यू आर यूजिंग पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे, राइट। सो वहां पे भी एक्सपेंसेस कटता है, यू पे सर्टेन कमीशन टू द पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म्स। तो all those expenses that are occurring which are not directly involved with the direct production of the particular product, jam in our case, so that all things would come under the variable expenses। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पता था ग्रॉस, जो आपका ग्रॉस मार्जिन कुछ 65,000 का था। अगर हम उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक बहुत आर्बिट्री नंबर, इज अ वेरी आर्बिट्री नंबर दैट आई हैव टेकन, इट्स नॉट लाइक आई हैव डन अ कैलकुलेशन, बट देन if you minus those concept, then you'll minus those number, then you'll come to a margin known as contribution margin। ठीक है। Contribution margin will cover, but then you understand what is variable expenses here, right? Any expenses which are not directly involved in the production of the particular product will come under variable expenses। ठीक है। So the importance is like I've mentioned here. More sales means higher variable expenses. Need to plan working capital accordingly। ठीक है। तो वो सारे इंपॉर्टेंस होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस का। देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। तो हमने देखा था कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने सीखा था, अगर हम ग्रॉस मार्जिन से इसको माइनस कर रहे हैं, देन विल कम अंडर टू अ कॉन्सेप्ट नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो बाकी आने वाले कॉस्ट है वो कवर होगा कि नहीं, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल गिव यू एन आइडिया। ठीक है। सो देयर आर सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन उस फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें माइनस कर दिया 40,000 आ गया। ठीक है। हमारे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट होना ही होना है, रेंट वगैरह जो भी हो गया हमें फिक्स करना ही, मान लीजिएगा नाउ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अराउंड 40,000। नाउ वी हैव अ फिक्स कॉस्ट से 50,000, दिस इज एन आर्बिट्री नंबर आई एम टेलिंग। नाउ यू आर डूम्ड, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 40,000 है, माय फिक्स कॉस्ट इज एक्सीडिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट आई हैव। मैंने इतनी सारी चीजों को कवर करके इतना लेके आ गया, बट मेरे फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कुछ झोल है। ठीक है। सो इफ यू आर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, नाउ चैट जीपीटी वगैरह है, देन यू कुड एक्चुअली मेक अ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एंड सी कि मुझे कितने पैसे कितनी जगह होना चाहिए मेरा, है ना, मैं कितने पैसे स्पेंड कर सकता हूँ, राइट। सो यू थिंक कैसे आप अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आया, नाउ आई नो द फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी, आई नो दिस इज द फिक्स कॉस्ट दैट विल ओकर
if I am getting a contribution margin of this and I have a very larger fixed cost wala thing, the business won't work. It's as simple as that. The business won't work, right? So that is how the contribution margin would, play a role, right? Contribution margin, if it's larger, one of the greater significance is maybe I can give more discounts also, right? To the existing product. Now I have a competitor who has similar product, but if my contribution margin is better than my competitor, why not? I can give a more discount to the to my product. Right. So वहाँ पे contribution margin is also known as CM2. वैसे people also mention contribution margin as CM2 as well. So you can actually get a concept, actually get a idea कि मेरा contribution margin कितना होना चाहिए, right? So we have much more concepts to cover on EBITDA, fixed cost, like I mentioned, all those things. But then I think for the starters, this is enough for this part one. We'll see a bit of QSR thing now. But यहाँ तक I hope the concepts are very clear. It's really, really interesting, I would say, right? You go through this concept like say 3 or 4 times a week. अभी आपको लगेगा कि मैं एक रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ, but then if you go through these concepts weekly, thrice, 4 times, and then you simultaneously start reading report, things become much more funnier. Believe me, I mean, very interesting, right? You will actually enjoy the process of reading, or actually enjoy the process of learning from say a YouTube channel or whatever it is, right? So right now we'll cover this concept, and then we'll probably move back to I'll just give you a small gist, maybe if possible. So see, we have covered up to the CM2 level here. So all those things, right? We have discussed is actually part of this, P&L statement. CO, this is cost of goods sold and all. Gross profit हमने देखा, that is termed as CM1. CM2 we have seen there are certain fixed costs, the admin expenses, वगैरह. So this particular area, EBITDA, I think it's an interesting topic altogether where I can speak for say 20-25 minutes alone for EBITDA. EBITDA is an important value. अगर आपने देखा होगा शार्क टैंक वगैरह में, people ask about EBITDA as well. So it's a very interesting concept. So this sheet, अगर हमने स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो that might be a bit overwhelming for you. But then if you see it right now, you could actually relate how things have been worked out, right? So we'll learn in depth about all those concepts in detail in the coming classes, right? So moving to I've taken one segment here. Basically, it's QSR, the quick service restaurant here. है ना? We'll be covering other segments also. But the idea of the session is not to give you gyan about like what QSR segment is, right? The idea of this particular session is how do you use your brain to, or how do you structure your, learning ability so that you understand the segment, sector or segment, whatever it is, very well. ठीक है. Now, if I download a QSR report, say from a BCG Word document, there will be a lot of graphs involved. Maybe a 20-25 page document, 4 or 5 page, I might get bored, right? But it is for me, what things I've worked is I actually get a sense of that particular segment before I delve into the report, right? There are concepts in QSR that I'll be covering later, but you see, when you have a certain mindset about everything, right? Now just understand, take an example of cricket also. Now if you go and play cricket without understanding rules, without understanding like what are the terminologies in cricket, or you haven't watched a match of cricket earlier but you're directly going and playing in cricket, आपको feel नहीं आएगा. You might find cricket is not for me. You might leave it say after a couple of deliveries also. बट देन आप क्रिकेट कब खेलने जाते हो? आप क्रिकेट वो टाइम खेलने जाते हो जब आपने बहुत मैचेस देखा है, आपको समझ आ गया कि एलबीडब्ल्यू क्या होता है, आपको समझ आ गया वाइड क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, राइट? आपको फील्ड प्लेसमेंट्स आपको समझ आता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्या होता है. देन व्हेन यू गो एंड प्ले क्रिकेट, आपको सेंस बनता है, ठीक है? देन यू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. आप क्रिकेटर बनना नहीं बनना, दैट्स अ होल डिफरेंट प्रोसेस. बट देन यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड विद सम नॉलेज, राइट? तो बेसिक ये है कि अगर आपको कोई सेगमेंट पढ़ना है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके रिलेटेड चीजों को समझो जो सिंपल है, राइट? क्यूएसआर फॉर एग्जांपल, आप सिंपल इंस्टाग्राम रील और से यूट्यूब, यू सर्च क्यूएसआर, आपको बहुत सारे रील्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? आप 10-15 रील देखो. नाउ यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट. इन क्रिकेट में भी आप कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते. जब आप छोटे होते हो, आप क्रिकेट देखने के लिए आप नहीं सोचते हो कि मैं पहले ग्राउंड रूल्स पढ़ूंगा, मैं से आई लर्न अबाउट टर्मिनोलॉजीज. नहीं, वो एक प्रोसेस में आ जाता है. आप एफर्ट्स डालते हो, आप, है ना?
कैसे देखते हो आप विजुअल मेमोरी को ही आप देखते हो, rather than you take a किताब and learn about rules of cricket. No, that doesn't work, right? It might work for few people, but this is just from my experience कि अगर आप इसके रिलेटेड जितने आप फील लोगे, आप ग्राउंड में जाओगे, आप कोई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, आप डोमिनोज जाओगे, राइट, आप केएफसी जाओगे, आप वहां जाके आप देखोगे, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा, आप जाके वहां सवाल पूछोगे, अच्छा आपका सेटअप वैसा है, डोमिनोज का सेटअप वैसा है, बर्गर किंग का सेटअप वैसा है, आप जाके पूछोगे, राइट। ब्लू टोकाई फॉर एग्जाम्पल, आप जो कि बहुत फेमस कॉफी ब्रांड है, सो यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज एंड देन यू गो एंड टॉक टू देम, वहां पे आपका नॉलेज डबल होगा। Right now, you have 20% of knowledge. You're applying that 20%. You'll see an incremental increase in your knowledge, right? So that should be the process rather than directly delving into the reports. Reports are fantastic. Reports are good, but then to understand that report, I believe you need to have a basic understanding or at least a feel of that segment before you enter into that particular document of the reports, right? So that is how the structured learning is. This is the main information I wanted to give you. In the further course of interaction, we'll be using AI tools also to understand how the things and all work. But just to give you a feel, now this is not a complete masterclass on QSR. Again, it will take around 2 to 3 sections, give you a feel of 30% of the whole QSR. But then I'll give you a structured way of how I follow things, right? Um, so moving quickly, so QSR, like I know everyone would know, it's a quick service restaurant. आपने देखा होगा कि बहुत फटाक से चीजें होता है वहां पे, आप जाते हो, ऑर्डर करते हो, डोमिनोज जाते हो, आप ऑर्डर करते हो, आपको वेटिंग नंबर दिया जाता है, देन यू गेट योर पिज्जा, देन यू टेक इट। सम हैज अ वेरी मिनिमल सीटिंग कैपेसिटी, बट मोस्टली नहीं होता है, बट दैट्स हाउ द द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वर्क्स, राइट। ऑपरेशनल हैवी होता है, सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, अगर आप रिपोर्ट्स में भी अगर आप पढ़ोगे, है ना, अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह देखोगे, सर्वाइवल इज लिटिल डिफिकल्ट, बट दैट्स हाउ द थिंग्स आर, राइट। अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे क्यूएसआर एज कंपेयर टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ फूड अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस लाइक कैफे वगैरह हो गया, पब्स वगैरह होगा, उनका ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा ही रहा है, राइट। तो ये 23% तक दिखा रहा था, द लास्ट रिपोर्ट दैट आई हैव सीन, the growth rate of the particular, the QSR segment has been increasing, right? So as compared to other segments like say a cafe or something, यहाँ पे growth rate ज्यादा है. Say fine dine for example. Fine dine has been a very declining business from what I have understand when I have spoken to people, right? But इसका growth rate अच्छा है, but इसका मतलब ये नहीं है कि सब शुरू कर सकते हैं. Then you have to go into nitty gritty of it, right? Now we are just understanding the market. हम feel ले रहे हैं. Now we are understanding, okay, growth rate अच्छा है, CAGR अच्छा है इसका as compared to other form of segment. But यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि QSR क्या है, उसमें से हम पहले मैक्रो लेवल पे समझेंगे, देन विल कम टू माइक्रो लेवल, है ना। पहले होल गेम को समझेंगे कि क्या चल रहा है, क्या चेन है वगैरह, देन विल कम टू दी माइक्रो लेवल, राइट। शॉकिंग इनसाइट्स ये है कि अगर आप कुछ भी ये देखो, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने रेस्ट वर्क्स करके इसमें देखा था कि मोस्टली जो रेस्टोरेंट बिजनेसेस है 60% शट डाउन, ठीक है। 60% जो है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज शट डाउन, और 80% जो है अराउंड 5 years में they got shut down. So you can understand how difficult the business are, right? Now, see, one way of approaching the things for me, you understand what are the difficulties that particular segment is, coming up with, right? Okay, you get a basic understanding of QSR कैसा work करता है, you know the brands वगैरह, लेकिन when you understand कि nitty-gritties क्या है, difficulties क्या है ना, and that is how the whole the game would actually give you sense. क्योंकि एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको डिफिकल्टीज पता होता है, अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, यू एक्चुअली थिंक अबाउट सॉल्यूशन कि मैं क्या सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ इस चीज को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप निटी समझो, डिफिकल्ट एरिया समझो वहां पे कि क्या हो रहा है भाई, देन यू एक्चुअली डेवलप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि देखिए जो सेटअप करने का कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अभी आप पूरे गेम को समझा, हमने फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट में हमने एक कोरिलेशन देखा था। तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट होता है मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसको कवर नहीं कर पाता, राइट। तो फिक्स कॉस्ट इज हैवी, तो किचन सेटअप हो गया, रेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको लोग चाहिए भाई। नाउ व्हेन यू सेटिंग अप ऐसे सेटअप लाइक अ डोमिनोज या पिज्जा हट जो भी है, अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप कैसे कवर करोगे। आपने 2 लाख
डाला है बिजनेसेस में, लेकिन अगर आपके पास वो कमाई नहीं हो रहा है तो आपको 2 लाख रिकवरी नहीं कर पा रहे हो। वो मैंने मैक्रो लेवल में बात किया, राइट? तो द फिक्स कॉस्ट है वेरी हाई। ठीक है, तो आपको वो सीएम वाला जो हमने लेवल पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM2, आपको वैसे प्रोसेसेस आपको इनबिल्ड करना होगा। यू नो द फाइनेंसेस नाउ, देन यू हैव टू ऐड मसाला इनटू दैट। ठीक है, तो ये एक सेंस बनता है। तो फिक्स कॉस्ट जो है बहुत हाई होता है, रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वजह से फ्यू ऑफ द रीजन जो है कि बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं बहुत जल्दी। और अगर आप देखो रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर एग्जांपल, 40 to 50% जो है आपके जो स्विगी जोमेटो वो ले चले लेके जाते हैं, राइट? इफ यू सी द रिपोर्ट ऑल्सो, अगर आपको पता चल जाएगा, इफ आई जस्ट जूम अ बिट, ओके, बट हियर द ब्रूटल रियलिटी, स्विगी Zomato now charges 18 to 30 percentage base commission plus 5 to 8% delivery fees plus 18% GST. ठीक है, डू द मैथ ऑन अ 300 ऑर्डर यू आर लेफ्ट विथ 191 आफ्टर डिडक्शन। तो आप समझ रहे हो पूरा गेम? पूरा गेम आपको समझ समझ आ रहा है कि जो आपके थर्ड पार्टी, जो आपके ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो कमीशन लेके जा रहे हैं यार, कुछ बचता नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग डिस्काउंट्स वगैरह करते करते लोगों के पास कुछ बच ही नहीं रहा। सो सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो आपके टाइम में, लेकिन आप समझो कितने सारे डिफिकल्टीज ऑलरेडी है ना? ये मुझे मिल गया माइक्रो लेवल। अब मैं माइक्रो लेवल में कैसे जाऊंगा? माइक्रो लेवल में मुझे स्टोर जाके बात करना पड़ेगा। ये तो मुझे पर पता चल गया कि 18 to 30% जो कहा जाते हैं, बट कितना एक्चुअली खाते हैं? आप जब 5 रेस्टोरेंट में जाके बात करोगे तब हमें पता चल जाएगा, राइट? देन यू आर एक्चुअली डूइंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you're actually building that contribution margin, you're actually building your fixed cost वगैरह, है ना? That is how you learn businesses rather than just learning about theoretical stuffs. It's important that you gain the concept and then you actually imply into that real world. Like I was, yeah, so like I was telling कि ये पूरा गेम जो है आपका, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट प्रोडक्ट में बेचने जब जाओगे देन देयर आर लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दैट इज बीइंग इन्वॉल्व। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, देन यू गो टू द ग्राउंड रियलिटी, राइट? सो दैट इज हाउ द प्रोसेस शुड बी। आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय जूनियर्स, शी वाज आस्किंग मी कि मैं रिसर्च कर रही हूँ कुछ प्रोडक्ट का, तो मैं कैसे करूँ? आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। ठीक है, मुझे जेडी मिला है, मुझे जॉब में अप्लाई करना है, बट मुझे नहीं पता कि रिसर्च कैसे करना है, राइट? सो दिस इज एन अप्रोच she did that and she's following this step, right? तो आपको भी you know every time try to have the theoretical knowledge get connected with the practical reality to get the overall understanding, right? Moving on. um okay, there are important factors that play a role on the deciding the success of the QSR और the रेस्टोरेंट बिजनेस। एक हो गया आपका साइज ऑफ द स्टोर और दूसरा हो गया आपका लोकेशन क्या है, राइट? साइज का ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े साइज का रेस्टोरेंट खोला तो मेरा रेवेन्यू उसमें से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नो, दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट हियर, राइट? यू समझो थिंग्स लाइक व्हेन यू इंक्रीज द साइज ऑफ द रेस्टोरेंट, देन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ज्यादा लोगों को केटर करना चाह रहे हो। when you're trying to cater a lot of people, then you are actually having more equipments also there, right? So that the cost also increases, right?
रेवेन्यू तो चलो इंक्रीज हो सकता है, बट द कॉस्ट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, योर फिक्स कॉस्ट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, यू आर like paying more rent, you are involving a lot of manpower to the organization, so the fixed cost is getting inculcated in all the process, right? So the size of the store matters. You have to be very calculative, and also the location. Now if you're building a restaurant in a location where there is not many demand, where people don't go outside much, है ना, अगर आप उस जगह में अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हो, तो देन यू माइट नॉट हैव द फुटफॉल, राइट? आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं, मतलब इन्फ्लुएंस करेगा उस केस में, राइट? मान के लीजिएगा आप, इफ यू आर पुटिंग अ रेस्टोरेंट से इन अ एरिया विच इज मैक्सिमम ऑफ वेजिटेरियंस देयर, राइट? आप मान के चलो एक पर्टिकुलर पेटीज 49 रुपीज का होगा, है ना, आपने ऑलरेडी बहुत पैसे रखा है, मतलब खर्च किया है ऑलरेडी उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। बट देन यू विल, इफ यू डोंट हैव फुटफॉल, एंड इफ बिकॉज वेजिटेरियन वाले ऑप्शन में आप प्राइस रिड्यूस करके ही देते हो लोगों को, देन यू आर नॉट एबल टू कवर द कॉस्ट, है ना? तो उस केस में भी आपको समझना पड़ेगा कि मेरा पर्टिकुलर लोकेशन क्या होगा, मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है। ठीक है, मुझे आइडिया होना चाहिए कि जो पैसे मैं अगर यूज कर रहा हूँ, can I actually cover my the cost that I have put it in the restaurant businesses? You have to think from that aspect as well. Now again, मैं मैक्रो माइक्रो कर रहा हूँ, बट ओवरऑल देखो तो मैक्रो में ही कर रहे हैं। जब तक आप चीजों को करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। बट देन यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट बिफोर देन एक्चुअली थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस, देन delving and then later regretting on that. हम कुछ पॉपुलर ब्रांड्स देखेंगे, इसमें देवयानी हो गया, जुबिलेंट फूड्स हो गया, सफायर फूड्स वगैरह हो गया, राइट? दिस माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर फ्यू पीपल। आप देखोगे KFC, पिज्जा हट एंड ऑल अ पार्ट ऑफ देवयानी, सफायर फूड्स में भी है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो आपके ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मान लो जो हमारे कंट्री के जो है ना, सो दे एक्चुअली, तो KFC को अगर डायरेक्टली अगर आना है इंडिया में, देन दैट विल बी much more what do you say, कॉस्ट हेवी प्रोसेस, जहां आपको फिर समझना पड़ेगा मार्केट के बारे में, आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सारे बिजनेसेस जो है उनके बिहाफ में, लाइक दे डिस्ट्रीब्यूट देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट? So these are some of the popular brands. What you should do as an exercise for now is actually go into their website, download their annual report. Right now, just keep that down, download the annual report and learn through things there. फाइनेंशियल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट मैनेजमेंट समझो, मैनेजमेंट का क्या टेक अवे रहे। तो हर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा, मैनेजमेंट ने की टेक अवे देता है कि हमने इस साल ये सारी चीजें किया, हमारा प्रॉफिट कैसा रहा, राइट? अंडरस्टैंड दैट। देवयानी सफायर फूड्स के बारे में, उनके पूरे सप्लाई चेन के बारे में समझो, यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, इंस्टाग्राम में देखो कैसे चल रहा है चीजें, जुबिलेंट फूड्स के बारे में समझो, है ना? तो दैट वुड एक्चुअली गिव यू अ सेंस कि ये सारे ब्रांड्स कैसे काम करते हैं। नाउ आप देखो, आप इस पर्टिकुलर केस में ना, अगर आपको थोड़ा फाइनेंशियल का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी है, आप सप्लाई चेन समझ रहे हो, देन कैन एक्चुअली रिलेट। ठीक है, नाउ we are hardly like 20-25 minutes into the session, if I'm not wrong, but we are actually learning things. हम बेसिक समझ रहे हैं, हम रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली बोलता फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बिजनेस में, देन नो, देन यू माइट नॉट हैव रिलेटेड टू इट, बट देन यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एस्पेक्ट ऑल्सो वहां पे, है ना? यहाँ पे अभी आपका रिसर्च प्रोसेस बहुत इंप्रूव होगा। The prompts that you would give to ChatGPT would improve, right? Rather than having a overall basic level of prompts, the prompts would be much on the micro level. तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम चीज के कॉन्सेप्ट्स को हम प्रॉम्प्ट में भी यूज कर सकते हैं और डेफिनेट रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, राइट? So this is all about abhi ke liye. This is few of the the other concepts related to the AI thing that we'll cover later. But as far as my concern was, कि for the part one we'll learn few financial concepts, we'll learn a bit about QSR, हमें थोड़ा सा आइडिया मिला QSR के बारे में। there's a lot of things to cover, of course we will correlate with the daily current affairs, or say what has happened in the year so far, we'll be correlating with that. And very interesting part is how do we put good prompts in chat gpt and get few results. We'll apply few frameworks. I've posted on my LinkedIn also, like how do I see a profitability, growth, expansion, all those things, है ना, to this businesses, and get a sense कि मुझे basically how can I put a entrepreneurial mindset
to all these segments. So that is the idea. My idea is here is not to give you a full gyan about the segment. My idea is here is to give a bit of information about the segment and then help you understand how actually you can deliver value from those segments. That is my idea will be in the further sessions. This has been just an intro of about me, about a bit of a small concept that I would like to cover, but then we'll have a very frequent interaction over my over the time in my YouTube channel. So I wish you all the best and a happy advance happy new year. Keep learning, keep growing, because that is how the world is moving right now in the world of AI. It's important that you sharpen your mind also, and actually apply those into the tools that we are learning so far. So I would take a leave right now. Wishing you all the very best. We'll be having a frequent interaction over the time. So over the time over the coming time. Thank you so much.